I say our church is like a tuition center where we train people for the final examination. और मैं कहता हूँ हमारा जो कलीसिया है एक तालीम संस्था के समान है जहां हम तालीम You देते see, हैं लोगों now को। they have 1-year tuition centers to train you for IIT and medical college and all that. और अभी हमारे पास ऐसे ट्यूशन क्लासेस होते हैं जो IIT बड़े बड़े से कोर्सेज के लिए They तालीम say देते we हैं, guarantee you'll get a seat in the best college. और वहां वो लोग अब ये निश्चय देते हैं कि आपको अच्छी कॉलेज में सीट मिलेगा। I say this is what I say. और मैं उनसे कहता हूँ, You listen to everything I say, I guarantee you'll get 100% in the final examination. और मैं ये कहता हूँ अगर मैं जो आप कहता हूँ वो अगर आप सुनेंगे तो आपको 100% उस न्याय के दिन मिलेगा। The final examination, the final examination is when you stand before Jesus Christ. जो अंतिम परीक्षा है जब आप यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे। You want to get 100% there? क्या आपको 100% वहां चाहिए? Or you want everybody to say, oh, what a beautiful way you sang today. लेकिन क्या आप ये चाहते कि धरती पर आपको आपसे कि कितना सुंदर आपने Oh, गाया how beautiful that service was. और कितनी सुंदर वो सभा थी, Or even, what a wonderful sermon that was. और आपसे कोई कहे कि कितना सुंदर वो आपने प्रचार किया। It's not going to give you marks in the final day. और इससे आपको कोई भी गुण नहीं मिलेंगे अंतिम दिन में। That is all the Spirit using us, coming upon us and using us. और ये उस प्रकार है जो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है और आपको इस्तेमाल करता We है, cast out demons. और आप दुष्ट आत्माएं We निकालते हैं sang songs. और गीतों को गाते हैं, We preached. प्रचार करते हैं। What about sin? लेकिन पाप के बारे में क्या, What about the inner life? जो हमारे भीतर है। So when we think about forgetting the things that are behind and pressing towards the goal, और जब हम पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ने के बारे में सोचते हैं, we have to ask ourselves, what is the goal? और तब हमें पूछना हमारा लक्ष्य क्या है। It is to become like Jesus Christ, क्या यीशु के समान बनना, which means to be more and more free from sin. जिसका मतलब और अधिक पाप से मुक्त होना है। Not to heal more sick people or preach more sermons. और ज्यादा प्रचार करना या बीमारों को चंगा करना वो मतलब नहीं होता। I'm not against that. मैं उसके विरोध में नहीं हूं। Since I started concentrating on the inner life, और जब मैं अपने जीवन पर इस बात पर ध्यान and करने the लगा, Holy Spirit began to show me that my goal in life is to become like Jesus Christ. और जब पवित्र आत्मा मुझे बताने लगा कि मेरा लक्ष्य यीशु के समान बनने का है, In the last 42 years, और पिछले 42 साल में, I didn't stop serving God. और मैंने प्रभु की सेवा करना बंद नहीं किया। I preached मैंने प्रचार किया hundreds and hundreds of sermons. और बहुत सारे हजारों मैंने प्रचार Cast out किया demons. और दुष्टात्माओं को prayed for निकाला the sick, और बीमारों के लिए चंगाई, everything. प्रार्थना की, सब कुछ किया। But now it is coming from within. लेकिन अब वो भीतर से आता है। It's from inside. The water is overflowing and blessing people. लेकिन अब वो भीतर से पानी बाहर निकलकर औरों को आशीष So दे रहा now है। I am concerned about the inside only. और मुझे ये भीतरी जीवन में मुझे I, चिंता है। I know that if I thirst and keep on drinking from Jesus, और मुझे ये पता है कि अगर मुझ में प्यास है और मैं यीशु से पीता रहता हूँ, this will automatically overflow. और तब वो पूरी तरह से अपने आप ही वो बहेगा If you बाहर। pour water into this open bottle, अगर ये खुली हुई बोतल में आप पानी डालते हैं, it will clean up the bottle first. वो पहले अंदर से बोतल को If it's all साफ dirty, करेगा, if it's all dirty, it will clean it up. वो अंदर से सारी गंदगी को साफ And करेगा। the bottle has to do nothing. अभी वो पूरी तरह से साफ है, The bottle has to do nothing. बोतल को अपने आप से कुछ नहीं करना, Automatically the river will overflow and flow out from here and bless people in all directions. अपने आप से ही वो पानी बाहर बहने लगेगा और लोगों को आशीष देगा। That is true New Testament ministry. और यही नए नियम की एक सच्ची So, सेवकाई है। if you don't concentrate on your heart being clean, और अगर first, पहली बार अपने अपने हृदय को शुद्ध होने में आप अगर ध्यान नहीं देते you हैं, will always live with this old covenant ministry. तब तक आप एक पुरानी वाचा के समान ही I जियोगे। must sing well, आप I अच्छा must गीत preach गाएंगे, well, आप प्रचार I करेंगे must अच्छा, witness to others, औरों को गवाही देंगे, I must go to church regularly. और निरंतर All आप चर्च जाएंगे external ministry. और सेवकाई करेंगे। And you live at home आप घर पे with रहेंगे, your wife and your husband just like any ungodly man. लेकिन आप घर पर अपने पति या पत्नी के साथ एक अन्य जाति व्यक्ति के समान And your रहेंगे। children will be as worldly as any other worldly person in any college today. और अन्य जाति के बच्चों के समान ही आपके बच्चे उस प्रकार रहेंगे। They'll grow up to watch pornography और वो अश्लील चीजों को देखते हुए बड़े होंगे, and they'll grow up to dress like any worldly person, that there will be no difference between this sister and that worldly woman. और दुनिया के लोगों के समान ही वो अपने पोशाक को पहनेंगे और कोई अंतर नहीं होगा दुनिया के लोगों में और एक मसीह व्यक्ति के अंदर। But they'll be used, they'll be singing, लेकिन उनका इस्तेमाल होता है, वो they'll गीत be गाते हैं serving, witnessing, और वो सेवा करते हैं, गवाही देते हैं, and one day they'll stand before the Lord, लेकिन एक दिन आएगा वो परमेश्वर के सामने खड़े होंगे say, Lord, we sang in the choir, और कहेंगे प्रभु हमने क्वायर में गीत गाया we witnessed to so many people, और हमने बहुत सारे लोगों को आपकी गवाही दी we gave money for your work. और आपने आपकी सेवा में हमने दिया। The Lord will say, और प्रभु कहेगा, man looks on the outward appearance, और मनुष्य जो बाहरी तौर रूप को देखता है, I look at your heart. पर मैं हृदय को देखता हूँ। Your heart was not clean.
तुम्हारा हृदय पवित्र शुद्ध नहीं था was full of impurity. और सारी अशुद्धता से भरा हुआ था। You thought you had the Holy Spirit. आपको लगा कि आपके पास पवित्र आत्मा है। The Holy Spirit makes people holy. पवित्र आत्मा लोगों को पवित्र करता है। Remember that. It's not the amount of noise you make. और ये याद रखे, पवित्र आत्मा मतलब बड़ा बड़ा शोर करना वो नहीं होता है। I often tell the story of this Pentecostal man who came to our church in Bangalore. और बेंगलोर में ये कहानी मैं अक्सर बताता हूँ। कलीसिया में एक पेंटिकोस्टल आदमी हमारे कलीसिया में आया। I never knew him. मैं उसको कभी नहीं He जानता था came to me after the service. और सभा के बाद वो मुझसे मिला। He said, "You don't have the Holy Spirit here." उन्होंने कहा कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। I said, "How do you know? मैंने कहा आपको कैसे पता, How do you know whether I have the Holy Spirit? और आपको कैसे पता मेरे पास पवित्र आत्मा है या नहीं? Do you know how I talk to my wife? कि आपको पता है मैं कैसे मैं Do अपनी you know पत्नी से how I बात करता हूँ how I handle money? और कैसे पैसों को मैं Do you know व्यवहार how I करता bring हूँ, up my children? कैसे बच्चों को बढ़ाता हूँ। Those are the ways you'll know whether I have Holy Spirit or not. और वो जगह पर ही पता चलता है कि पवित्र आत्मा आप में है या He नहीं। said, "Not all that. There's not enough noise here in this meeting." और ये सभा के अंदर शोर नहीं है। I said, that is the difference between you and me. और यही अंतर है तुम में और मुझ में। Your Trinity is Father, Son, and noisy Spirit. और आपकी जो त्रिएकता है पिता, पुत्र और शोर करना। My Trinity is Father, Son, and Holy Spirit. और मेरी जो त्रिएकता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। You keep your noisy spirit, I'll keep the Holy Spirit. और आपका शोर करने वाला आत्मा आपके पास रखे, मैं अपना पवित्र करने वाला आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे पास When we रखता हूँ। stand before the Lord, we'll discover whether the Holy Spirit was noisy spirit or Holy Spirit. जब हम यीशु के सामने उस दिन खड़े होंगे तब पता चलेगा पवित्र आत्मा शोर का आत्मा है या पवित्र करने वाला आत्मा I है। believe in raising my voice and praising the Lord. और मैं इस चीज में विश्वास करता हूँ, अपनी आवाज को उठाकर प्रभु की स्तुति I करने believe in में, clapping, raising my hands and everything. और अपने हाथों को उठाकर ताली बजाकर But प्रभु की I स्तुति also करने में। believe if it does not come from the innermost being, it's hypocrisy. लेकिन मैं ये भी विश्वास करता हूँ अगर वो मेरे भीतर से नहीं आ रहा तो वो एक पाखंड है। Because man listens to the outside, God listens to the heart. मनुष्य बाहरी तौर को देखता है लेकिन मनुष्य परमेश्वर हृदय को So when देखता we है। think of pressing towards the mark, और जब हम सोचते हैं उस निशानी की ओर दौड़ने के बारे में, please remember this, brothers and और sisters. भाई और बहनों इस चीज को याद रखें, It is not ministry first. और सेवकाई पहले नहीं It है, is life first, ये जीवन पहले है, from which flows ministry. और इस जीवन के द्वारा फिर सेवकाई बहती है। And even if you don't do so much ministry like those others, और औरों के समान अगर आप सेवकाई ज्यादा नहीं कर पाते it will be pure. लेकिन आप पवित्र है, Would you rather drink one glass of pure water or gallons of filthy water? क्या आप एक शुद्ध एक ग्लास पानी पीना चाहेंगे या एक बहुत हजारों लीटर जो पानी है अशुद्ध पानी पीना चाहेंगे? One glass of pure water is worth much more than millions of gallons of dirty water. और एक बहुत हजारों गैलन पानी से जो दूषित है उससे अच्छा एक छोटा सा प्याला जिसमें शुद्ध पानी है वो अच्छा है। I've often said like this to the Lord, और मैंने अक्सर ये परमेश्वर से इस तरह कहा, Lord, I cannot bless people. और मैंने कहा प्रभु मैं लोगों को आशीष नहीं दे सकता, True blessing only comes from heaven. और सच्ची जो आशीष है वो स्वर्ग से ही आती है, But it has to flow through this pipe called Zach Poonen. लेकिन वो जो आशीष है इस पाइप जो जैक पुनन है उससे बहना है। I cannot produce the water. और मैं प्रभु की स्तुति नहीं कर सकता, I just want to keep the pipe clean और केवल मुझे वो पाइप जो है उससे शुद्ध रखना है so that people get some clean water. ताकि लोगों को शुद्ध पानी मिले। When it comes from heaven, it is pure. जब वो स्वर्ग से आता है तब वो शुद्ध But है, if it flows through a dirty pipe, लेकिन जब वो एक गंदे दूषित पाइप से बहता है, dirty thoughts, एक बुरे विचार angry words, और क्रोधित शब्द wrong attitudes to people, और लोगों की तरफ एक बुरा व्यवहार, by the time it comes through this pipe, it's filthy. और जब तक वो पाइप से बाहर निकलता है तब तक वो दूषित हो जाता है। Is it like that with क्या you? या क्या आपके साथ ऐसा है? Let's learn a lesson today. और आज इस पाठ को हम सीखें, Let's pray. प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us to remember what we have heard. प्रभु आपके वचन को याद रखने के लिए हमारी मदद करें। To put first things first, प्रभु पहली चीजें पहली रखने के लिए pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।